Hi guys, welcome to my channel, The Curious Coder. Today's video is about global exception handler. Okay, it is something which will always be seen in any well-written code. Hence, one should definitely know how it works. So let me show you the topics that we will be covering in this video. First, I'll be talking about the need for exception handling. Okay, so I'll be telling you that why do we need exception handling. Then we'll solve exception handling using the try-catch solution. Okay, so first we'll solve using try-catch solution. Then in the end, I'll show you the global exception handling solution. Okay, and this one we will see in detail. Okay, so let's start the video. Okay, so I have created a Spring Boot application. In this, I have a test controller class. ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 APIs बनाए हैं, API 1, 2 and 3. Okay, and all these 3 APIs return a string value. ठीक है, and you can see these are very basic APIs. This returns hello, this returns hi and this returns hey. ठीक है, तो मैंने 3 काफ़ी simple APIs create करे हैं. So I'll show you. If I hit API 1, you see it returns hello. Then API 2 will return hi and similarly API 3 will return hey. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, I will deliberately add some exceptions in my APIs. ठीक है, मैंने ये जो APIs बनाए हैं इनमें हम कुछ exception add करके देखते हैं कि क्या होता है. ओके, सो let's say I took int a is equal to 1/0. ठीक है, तो मैंने 0 से डिवाइड करा है, so I will definitely get a runtime exception and that is arithmetic exception. ठीक है, then here I will take string a as null. ठीक है, एक null value ले लेते हैं and let's do one thing, let's just not even print, I'll just do a dot length. ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने a लिया जो कि null है and इससे मैंने इसकी length को कॉल करा, so this should give me a null pointer exception. And for method 3 I'll create a new exception. ठीक है, मैं एक custom exception बनाता हूँ खुद से. Let's call it test exception. तो एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, हम जस्ट एक्सटेंड कर लेते हैं एक्सेप्शन क्लास को. ठीक है, सो आई होप यू गाइस नो दिस एंड आई विल जस्ट ओवरराइड वन मेथड, दिस एक्सेप्शन मैसेज. ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर मैंने ओवरराइड कर लिया. ओके कूल. तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक रन टाइम एक्सेप्शन ऐड करा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन. यहाँ पे आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन विच इज़ ऑल्सो रन टाइम एक्सेप्शन एंड here I will throw test exception. ठीक है, एंड इसमें मैं एक मैसेज दे दूंगा, this is a test exception. Okay, now since this is an exception that I have created, so this is a compile time exception and I will have to handle it. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे throws ऐड करूँगा. I have to tell the compiler कि this method is throwing this test exception. ठीक है, एंड सिंस आई हैव रिटर्न थ्रो ओवर हेयर, सो बिलो थ्रो वी कैनॉट राइट एनीथिंग. ठीक है, तो मुझे ये कमेंट करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ इफ आई रीरन माई प्रोजेक्ट, ग्रेट. सो द प्रोजेक्ट इज अप, इट स्टार्टेड ऑन 8080. ठीक है, तो प्रोजेक्ट अप होने में कोई इशू नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों तो रन टाइम एक्सेप्शन है, तो ये API हिट के टाइम पे हमें आएंगे एंड ये वाला जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन था इसको मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया है. ठीक है, सो इसीलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में कोई इशू नहीं आएगा. सो दीज आर लाइक बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. आई होप यू गाइज नो अबाउट ऑल दिस. ठीक है ना, तो ओके, अब क्या करते हैं, आई विल जस्ट हिट माई API. ठीक है, सबसे पहले आई विल हिट API 1. ग्रेट. सो एज एक्सपेक्टेड दिस गेव मी एन एरर. ठीक है, दिस गेव मी 500 इंटरनल सर्वर एरर. ओके, सो इसने मुझे बता दिया कि एप्लीकेशन में कोई इशू है जो आपने API हिट करा है and it returned the response as 500 and the error message is internal server error. Okay, similarly for API 2 this also returns error and API 3 this also returns error. ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन अब आ गई, लेकिन तीनों APIs को हिट करने पे मेरे को एरर आया जो कि एक्सपेक्टेड भी था. ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे लॉग्स में देखूँ तो मुझे दिख भी जाएगा कि यू सी यहाँ पे हमें टेस्ट एक्सेप्शन आया एंड here we have null pointer exception. Okay, and then here arithmetic exception with the message /0. ठीक है, वो बता रहा है हमें कि 0 से आपने डिवाइड करा है, so that is why you have got an arithmetic exception. Okay, तो अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है. ठीक है, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन
इन दिस होल प्रोसेस, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ कि इन तीनों APIs के लिए मुझे सेम ही एरर यहाँ पे आया है. ठीक है, मतलब कि even though I know that there is some error in the application, but I actually don't know that what is the error, right? I mean, I can see the logs. In the logs, I will be able to know, but in the API response, I have no information about what the error actually coming is, right? तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमारा API फ्रंट एंड से लेट से हिट हो रहा है, तो वी नीड टू टेल द फ्रंट एंड कि भाई दिस इज एक्जैक्टली वाई यू आर गेटिंग एन एरर, और मे बी अ क्लाइंट इज हिटिंग आवर API एंड वी नीड टू टेल द क्लाइंट दैट दिस इज द एक्सेप्शन. ठीक है, सो वी हैव टू सेंड सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सेप्शन इन आर रिस्पॉन्स बॉडी. तो वो यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे कोड अब्रप्टली इट जस्ट इट एनकाउंटर्ड एन एरर एंड कोड अब्रप्टली एंड हो गया, एंड उसने बस रिटर्न कर दिया कि भाई देर इज समथिंग रॉन्ग विद द एप्लीकेशन. ओके, so actually we need to handle this. We will send a proper response. ठीक है, ताकि हमें API के रिस्पॉन्स में भी पता हो कि यार क्या हमें एक्चुअल में एक्सेप्शन आया है एंड व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद द एप्लीकेशन, राइट? सो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो वन वे इज कि आई विल जस्ट ऐड अ ट्राई कैच ब्लॉक. ठीक है, मैं इस एक्सेप्शन को हैंडल ही कर लेता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, आई विल ऐड अरिथमेटिक एक्सेप्शन हेयर ई, एंड ये जो मेरा कोड है इसको मैं ट्राई में लिख दूंगा. ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर आई विल रिटर्न ई डॉट गेट मैसेज. ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक काम करते हैं, ई डॉट गेट क्लास भी कर देते हैं प्लस. ओके, ठीक है, तो आई रिटर्न दिस. ओके, सिमिलरली फॉर दिस आई विल अगेन यूज ट्राई कैच, try and catch, and this will be null pointer exception this time, right? And I'll do the same. Okay, let's take it as E only. ठीक है, and इसको मैं सारे को try में कर दूँगा. Okay, similarly for API 3 I'll just again add try catch, एंड जो मेरे API का लॉजिक है वो मैं सारा ट्राई के अंदर कर दूंगा. सो अभी लॉजिक कुछ है नहीं, मैं बस एक्सेप्शन ही थ्रो कर रहा हूँ वैसे तो. सो दिस आई विल ऐड इन ट्राई, एंड इन कैच आई विल कैच दिस एक्सेप्शन. ठीक है, एंड आई विल जस्ट अगेन रिटर्न द क्लास नेम एंड रिटर्न द मैसेज नेम. ओके, लाइक दिस. तो मैंने तीनों APIs में ट्राई कैच लगा दिया है, एंड रिस्पेक्टिव एक्सेप्शंस को मैंने कैच करा है इन ऑल द 3 APIs, एंड आई एम जस्ट रिटर्निंग द क्लास नेम ऑफ द एक्सेप्शन एंड द मैसेज दैट इट होल्ड्स. ओके, सो आई विल रीरन माई प्रोजेक्ट. ग्रेट, सो अगेन इट्स अप. ठीक है, नाउ इफ आई हिट द API, cool. So what am I getting? First of all, I'm getting a 200 OK. ठीक है, why? Because इस बारी एरर आया लेकिन हमने उसको हैंडल कर लिया था, तो जो हमारा API है वो ऐसे फटा नहीं. ठीक है, उसमें एब्रप्टली एंड नहीं हुआ वो, तो API ने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है, बट द रिस्पॉन्स इज कि देर इज सम एरर. ठीक है, हमने रिस्पॉन्स में भेज दिया कि देर इज सम अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड इट्स मैसेज इज कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 0. ओके, सिमिलरली फॉर API 2 आई हैव नल पॉइंटर एक्सेप्शन. ठीक है, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज ए इज नल, एंड फॉर द थर्ड एक्सेप्शन जो हम नहीं बनाया, दिस इज टेस्ट एक्सेप्शन एंड विद इट्स मैसेज, राइट? तो अब क्या हुआ कि तीनों एक्सेप्शन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें हमारे API के रिस्पॉन्स में मिल गई. ठीक है ना? सो आई थिंक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. लेकिन अब इसमें अभी भी एक छोटा सा इशू है, तो वो मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से कि जो ये टेस्ट एक्सेप्शन है, ठीक है, ये इस API में भी थ्रो हो रही होती है. ठीक है, मान लो इसमें कहीं पे नल पॉइंटर भी थ्रो हो रहा है एंड टेस्ट एक्सेप्शन भी थ्रो हो रही है. सिमिलरली ये सेम एक्सेप्शन इस वाले API के अंदर भी अगर थ्रो हो रहा होता तो हम कैसे हैंडल करते हैं? ठीक है, मतलब ऐसा तो हो सकता है ना हमारे एक API में एक से ज़्यादा एक्सेप्शन आ रही हूँ. ठीक है, तो हाउ विल वी हैंडल दैट? सो इन दैट केस आई वुड हैव टू ऐड अनदर कैच ब्लॉक एंड आई वुड हैव टू राइट इट लाइक दिस, टेस्ट एक्सेप्शन T. ठीक है, तो ऐसे मुझे एक और कैच करना पड़ता है यहाँ पे, एंड कुछ भी मुझे यहाँ पे भी कुछ कोड करना पड़ता है. ठीक है, मे बी आई एम रिटर्निंग दिस सेम रिस्पॉन्स और मे बी आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट. ठीक है, कुछ और भी हो सकता है मैं मतलब हो सकता है मैं सिर्फ इग्नोर कर दूँ इस एक्सेप्शन को, या हो सकता है मैं कुछ रीट्राई मैकेनिज्म लगा दूँ, या फिर मैं कोई और मैसेज भेज दूँ. सो एनीथिंग कैन हैपन, राइट?
ओके सो दिस इज कैच ब्रांच आइडेंटिकल, ठीक है, इट्स अ वार्निंग एंड दिस इज, ठीक है, नेवर माइंड, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस। तो क्या होगा कि मेरे को ऐसे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है, जिस जिस एक्सेप्शन को मेरे को हैंडल करना है। अब नाउ इमेजिन देर इज़ अ रियल एप्लीकेशन विच हैज़ लॉट्स ऑफ मेथड्स, लॉट्स ऑफ APIs, मल्टीपल कंट्रोलर्स एंड एक्चुअली मल्टीपल एक्सेप्शंस एज वेल, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस किस API के अंदर कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, एंड आपको उन सारी एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा, उन सब के लिए कैच ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू सेंड अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू API, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अ बिट टीडियस प्रोसेस, नंबर वन, एंड ऑल्सो दिस इज़ अ रिपीटिव प्रोसेस, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो मैंने यहाँ पर कैच ब्लॉक लगाया है एंड जो मैंने यहाँ पे कैच ब्लॉक लगाया है, दीज आर वेरी आइडेंटिकल, ठीक है, दीज आर एक्चुअली टोटली आइडेंटिकल। तो जब मुझे पता है कि मेरे को टेस्ट एक्सेप्शन के केस में क्या हैंडलिंग करनी है, तो मैं उसको बार बार हर API में क्यों कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मतलब कि जितनी API में जितनी बार वो एक्सेप्शन आएगा, उस हर API में मुझे उसका एक कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा एंड मेरे को उसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज लीडिंग टू डुप्लीकेसी ऑफ कोड विच इज़ नेवर गुड, सो वी शुड ऑलवेज अवॉइड इट, ठीक है, वी शुड फाइंड अ वे टू अवॉइड इट। तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन गिव मी वन आर्ग्यूमेंट कि हम ये सारे कैच ब्लॉक्स हटा के हम एक सिंगल कैच ब्लॉक लगाएं एंड वील जस्ट ऐड एन एक्सेप्शन क्लास, ठीक है, एक इससे रिप्लेस कर दूँ मैं बस एक्सेप्शन E, राइट, एंड आई डोंट नीड एनी ऑफ दिस, आई जस्ट ऐड दिस, ठीक है। तो इससे भी मेरी बात बन जाएगी, वाई, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास जो होती है वो पेरेंट क्लास होती है सारी एक्सेप्शंस की, तो जब हम इसको कैच कर लेंगे तो सारी एक्सेप्शन ही कैच हो जाएंगी एंड हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, हमें एक एक हैंडल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक इशू है, द थिंग इज़ कि जावा ने हमें डिफरेंट एक्सेप्शन क्लासेस किसी रीज़न से ही प्रोवाइड कर रही है, एंड द रीज़न इज़ कि हम, हो सकता है मैं किसी और एक्सेप्शन के लिए कुछ पर्टिकुलर हैंडलिंग चाहता हूँ एंड किसी दूसरी एक्सेप्शन के लिए कुछ और हैंडलिंग चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो अरिथमेटिक के केस में मैं नल रिस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ एंड टेस्ट एक्सेप्शन के केस में मैं कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ, ठीक है, एंड फॉर सम अदर एक्सेप्शन आई वांट टू आई वांट टू हैव अ रीट्राई मैकेनिज्म, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। सो देयर कैन बी n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन योर यूज केस, राइट। सो इसीलिए हमें अलग अलग क्लासेस भी प्रोवाइडेड हैं। सो इट्स नेवर अ गुड सोल्यूशन टू हैव एक्सेप्शन, ओनली एक्सेप्शन इन द कैच एंड यूज दैट, ठीक है। अगर हम इस तरीके से जावा में काम करते तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास को यूज़ करते एंड एक्सेप्शन क्लास को यूज़ करते एंड हमारा सारा कोड हो जाता, ठीक है। बट वी हैव डिफरेंट क्लासेस सो दैट वी कैन वर्क ऑन ऑन अ ग्रैनुलर लेवल, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है कि हम ऐसे एक कैच कर लें सिर्फ एक्सेप्शन को एंड हम एक सिंगल हैंडलिंग करें, राइट। तो क्या ऑप्शन है, तो देखो इशू क्या है, इशू इज़ डुप्लीकेसी ऑफ कोड, राइट। सो मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक जगह पर डिक्लेयर कर दूँ कि अगर टेस्ट एक्सेप्शन आ रहा है तो आप ये रिस्पॉन्स भेज दो, ठीक है। मैं बस किसी एक जगह वो डिक्लेयर करके छोड़ दूँ एंड जितने भी मेरे APIs हैं उनमें से किसी में भी अगर वो वाली एक्सेप्शन एनकाउंटर होती है तो ऑटोमेटिकली वो वाला कोड ट्रिगर हो जाए एंड वो रिस्पॉन्स चला जाए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो अगर ऐसा कुछ मैं कर पाऊंगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे कोई कोड की डुप्लीकेसी नहीं आएगी एंड इससे एक और बेनिफिट होगा कि वो सारा जो कोड है एक्सेप्शन हैंडलिंग का वो किसी एक ही जगह पे होगा, तो मैं ईजिली वहाँ से देख सकता हूँ एंड मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई मतलब एक्सेप्शन कैसे हैंडल हो रहा है, सो इट विल बी रीडेबल एज वेल, राइट। सो दिस इज़ वेयर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर कम्स इन टू प्ले। ओके, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर कैसे काम करता है, instead of writing all these try catch blocks, I will just add one class, okay, I'll just name it global exception handler, ठीक है। this is just a naming convention, you can name it anything else as well, but generally हम यही name देते हैं। and this is important, I will just add this annotation @RestControllerAdvice, ठीक है। तो ये क्या करती है, it tells all the controllers कि अगर उनके किसी भी API में कोई एक्सेप्शन आता है तो उस एक्सेप्शन को इस क्लास के अंदर उन्हें सेंड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे वो कैसे हैंडल होंगे, दे विल बी हैंडल्ड यूजिंग सम मेथड्स, ठीक है। तो मैं हर एक्सेप्शन के लिए एक मेथड बना लूँगा, लेट्स से हैंडल अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ओके, एंड दिस विल हैव अरिथमेटिक एक्सेप्शन E, ठीक है। एंड लेट्स से आई रिटर्न e.get message, okay, and on this method I will have an annotation @exception handler जिसके अंदर मेरी जो एक्सेप्शन है जिसके लिए हम हैंडल कर रहे हैं उसकी क्लास का नाम होगा,
ओके कूल। सो दिस इज़ द कोड, वेरी सिंपल। एक मेथड मैंने बना दिया है जिसके अंदर मैंने हैंडलिंग करी है कुछ। तो हैंडलिंग क्या है अभी कि मैं मैसेज रिटर्न कर रहा हूँ बस, दैट्स ऑल। एंड जो एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन मैंने लगाई उससे मैंने मैप कर दिया कि कहीं पे भी मुझे अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है तो आपको ये वाला मेथड ट्रिगर करना है, ठीक है। सिमिलरली आई विल राइट द सेम फॉर ऑल द 3 एक्सेप्शंस, ठीक है। हैंडल अरिथमेटिक, हैंडल टेस्ट एक्सेप्शन, here also test, okay, and here also test. Then for this null pointer exception, ठीक है, and I'll change this as well, the name null pointer exception. ग्रेट। सो आई हैव एडेड अ क्लास जिस पे मैंने एनोटेशन लगाई RestControllerAdvice, जिसके अंदर मैंने 3 मेथड्स डिक्लेयर कर दिए हैं विच आर हैंडलिंग 3 डिफरेंट एक्सेप्शंस। ओके, अब मैं इन एक्सेप्शंस को कितनी मर्जी बार थ्रो करूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उनको ऑलरेडी हैंडल करके छोड़ दिया, ठीक है। तो आई विल जस्ट रिमूव द ट्राई कैच हेयर, आई डोंट नीड टू हैंडल दीज एक्सेप्शंस नाउ। ओके, आई विल जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हेयर एज वेल, ट्राई कैच, ठीक है। I'll just reformat the code थोड़ा सा। Okay, cool. So now I have these 3 APIs again, ठीक है। एंड इन तीनों में एरर मैं कुछ मैंने डाला हुआ है, बट आई हैव नॉट हैंडल्ड दोज एरर। ओके, आई हैव नॉट created a try catch, I have just created a global exception handler. And if I rerun my project, cool, it started on 880 and what I'll do, I'll hit API 1, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन मैसेज आ गया, देन API 2, इसमें भी एक्सेप्शन मैसेज आ गया ऑफ नल पॉइंटर, एंड सॉरी आई हिट API 2 अगेन, देन API 3 एंड आई गॉट द मैसेज दिस इज़ अ टेस्ट एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैंने कोई ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मेरे को एक्सेप्शन मैसेज मिल रहा है यूजिंग दिस क्लास ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग। जैसे अब अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स भी थ्रो करता हूँ, आई विल जस्ट थ्रो दिस एक्सेप्शन, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, आई विल थ्रो दिस एंड आई विल थ्रो दिस अगेन हेयर। ओके, दिस इज़ अ टेस्ट एक्सेप्शन, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं एंड इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, ये मेरे को हटाना पड़ेगा एंड आई विल हैव टू राइट थ्रोज हेयर। थ्रोज अभी भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें हमारा कोड कंपाइल करना है, तो वो हैंडलिंग तो हमें करनी पड़ती है फॉर अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो रिस्पॉन्स हम भेज रहे हैं वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, तीनों APIs में मैंने यही एक सिंगल एक्सेप्शन थ्रो करा हुआ है। तो आप देखो कि ये एक्सेप्शन मल्टीपल टाइम्स थ्रो हो रहा है, लेकिन इसको हैंडल मैंने यहाँ पे कहीं नहीं करा। ओके, आई हैव जस्ट हैंडल्ड इट इन द ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। Now if I rerun it, great, so it's up. And now if I hit it, API 1, you see test exception 1, then API 2, I get test exception 2 and API 3 के लिए मेरे को आ रहा है test exception 3। ओके, सो एक ही बार मैंने उसको हैंडल करा है, यहाँ पर सिर्फ एक इतना हैंडलिंग मैंने करी, लेकिन अब मैं उसको कितनी भी बार अलग अलग APIs में थ्रो कर रहा हूँ, वो हर जगह से उसको हैंडल कर ले रहा है एंड अकॉर्डिंगली वो उसका रिस्पॉन्स भेज दे रहा है, ठीक है। And also it works for multiple controllers. I'll just create another controller, test controller 2, let's say, ठीक है। and इसमें अगर मैं और भी API बनाऊँ तो let's say I have this, so I'll create, okay, sorry, yeah, so I have API 4 and API 5, ठीक है। इसको मेथड 4 कह देते हैं, मेथड 5 कह देते हैं, ठीक है। सो इन दिस आई एम, लेट्स से आई एम डूइंग इंट a इज इक्वल टू 1/0 एंड इन फैक्ट आई विल टेक दिस वर्ड। ज़रूरी नहीं कि मुझे कुछ रिटर्न ही करना है, मैंने API जो है वो मेरा वर्ड रिटर्न करता है, यहाँ पे भी इट रिटर्न्स वर्ड एंड हेयर आई एम जस्ट थ्रोइंग, मतलब बेसिकली मैंने कुछ ऐसा कोड लिखा है जिसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ,
आई डोंट नीड दिस, आई विल जस्ट थ्रो एन एक्सेप्शन जो मैंने हैंडल नहीं करा है। ठीक है, तो मैंने क्या नहीं हैंडल करा, मैं नॉर्मल एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ। ओके, थ्रो न्यू एक्सेप्शन एंड इसमें कुछ मैसेज डाल देते हैं, दिस इज जेनेरिक एक्सेप्शन। ओके, एंड आई डोंट नीड दिस एक्चुअली, आई नीड थ्रोज एक्सेप्शन। या तो मैंने 2 और APIs बना दिए। इस API में रन टाइम पे हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा एंड इस API में मैं एक्सेप्शन क्लास को थ्रो कर रहा हूँ विच इज़ एक्चुअली नॉट हैंडल्ड हेयर। ठीक है, यहाँ पे वो हैंडल नहीं कराया मैंने कहीं पे भी एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, तो नाउ इफ आई रीरन इट एंड ऑल्सो ये जो APIs हैं ये एक दूसरे कंट्रोलर में है, दीज आर नॉट इन द फर्स्ट कंट्रोलर। ओके, सो इट्स अप अगेन एंड इफ आई हिट इट API 4, ठीक है, तो इसने मेरे को मैसेज दे दिया /0। ओके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हैंडल्ड अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लेकिन इफ आई हिट API 5, ग्रेट, सो दिस इज अगेन गिविंग मी इंटरनल सर्वर एरर। वाई? बिकॉज आई हैव नॉट हैंडल्ड इट। ठीक है, तो जो हमने स्टार्टिंग में करा था कि जब हम हैंडल नहीं करते तो क्या होता है कि वो इंटरनल सर्वर एरर दे देता है, लेकिन वो उस एक्सेप्शन की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताता। तो ये वही यहाँ पे हो गया है फॉर द एक्सेप्शन मैसेज, राइट, फॉर द एक्सेप्शन मतलब इस वाली क्लास के लिए। अब अगर मैं इसको भी हैंडल कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, आई विल जस्ट हैंडल एक्सेप्शन, हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है, तो इट विल एक्चुअली वर्क। एंड मैं एक और चीज़ करके दिखाऊंगा, ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ स्ट्रिंग रिस्पॉन्स ही देना है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस API का रिटर्न टाइप था वॉइड, है ना, एंड यहाँ से अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो आया, मतलब रन टाइम पे हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया। लेकिन जब मैं हैंडलर में देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने इन दिस केस आई टुक इट एज स्ट्रिंग, राइट। तो इवन दो वी हैव अ डिफरेंट रिटर्न टाइप फॉर एन API, वी कैन हैव अ डिफरेंट रिटर्न टाइप फॉर द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, हम एक्सेप्शन को फिर भी अलग तरीके से भेज सकते हैं। तो जो मैं क्या करूँगा, फॉर दिस एक्सेप्शन आई विल जस्ट यूज़ अ क्लास रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, इसमें रैप करके इसको भेजता हूँ। एंड ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ना आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट स्टेटस कोड भी भेज सकता हूँ। जैसे कि मैं भेजूँगा डॉट इंटरनल सर्वर एरर इन दिस केस, और बॉडी में मैं भेज दूंगा ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो अब देखो एक्सेप्शन के केस में जब हमारा नॉर्मल एक्सेप्शन आता है तो मैंने स्ट्रिंग की बजाय रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग लिया एंड मैंने इंटरनल सर्वर एरर स्टेटस कोड दिया है। ठीक है, जबकि इनके केसेस में जो ये बाकी डिफरेंट केस है, इन सब में अभी तक हमें 200 ओके ही मिला है। ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता है रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड इसमें मैं एक डिफरेंट भेजता हूँ, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट अनप्रोसेसेबल एंटिटी डॉट बॉडी। ओके, एंड आई विल हैव ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो ये जो ये यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ ना, दिस इज एक्चुअली स्टेटस कोड। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ अनप्रोसेसेबल एंटिटी, तो इसका जो स्टेटस कोड है दिस इज़ 422। ओके, सिमिलरली इंटरनल सर्वर एरर का जो स्टेटस कोड है दिस इज़ 500। तो मैं ये सब चीज़ें भी सेट कर सकता हूँ इन माई ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, सो आई विल शो यू। कूल, सो नाउ इफ आई हिट दिस, ग्रेट। तो इस बार क्या हुआ, वो मैसेज हमें आ गया, लेकिन जो स्टेटस कोड आया वो आया 500 इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, क्योंकि यही हमने कॉन्फ़िगर करा था। एंड इफ आई हिट API 4, सो दिस गिव्स मी अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसका मैसेज यहाँ पे आ गया, लेकिन द स्टेटस कोड इज़ 422। ओके, एंड इफ आई हिट एनी अदर API, लेट्स से API 3, दिस गिव्स मी 200 ओके एंड दिस गिव्स मी दिस मैसेज। ओके, टेस्ट एक्सेप्शन हमने इसमें थ्रो किया हुआ है। तो इस तरीके से वी कैन हैंडल डिफरेंट एक्सेप्शंस इन ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, एंड वी कैन हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप्स ऑफ देम, एंड वी कैन ऑल्सो कन्फिगर द स्टेटस कोड्स। ठीक है, वो भी हम कन्फिगर करके भेज सकते हैं। ओके, नाउ वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, कि जैसे अभी ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली सारे कंट्रोलर्स को रीड करेगा, लेकिन हम चाहें तो इसको स्पेसिफिकली किसी एक कंट्रोलर के लिए, मतलब किसी एक के लिए भी या मल्टीपल के लिए भी वो कर सकते हैं कन्फिगर। तो ऑल आई नीड टू ऐड इज़ आई नीड टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्ट कंट्रोलर डॉट क्लास कर दूंगा, सो दिस विल वर्क ओनली फॉर दिस।
ओके, एंड इट विल नॉट वर्क फॉर दिस। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना। अभी मैं शो नहीं कर रहा, बट यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन एंड दिस विल वर्क फाइन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने कन्फिगर कर दिए एंड ऐसे मैं कॉमा करके और भी जितने भी कंट्रोलर ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कुछ नहीं लगाता तो इट वर्क्स फॉर ऑल द कंट्रोलर्स। If you found the video helpful, please like, subscribe and hit the bell icon. Also, don't forget to catch today's tip of the day.